Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and our continued coverage of the HBL PSL 9. And we are now in the qualifiers, rather going into the eliminator very soon. And it's been a very exciting HBL PSL 9. A tedious journey, a very challenging journey for a lot of people. But here we are towards the tail end of this very special tournament. With me in the pavilion, I'm joined by 4 former captains of Pakistan, 4 outstanding individuals who served the game of cricket and Pakistan really well. First up, I've got an opener, leg spin bowler, Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum salam, thank you. Next up, I've got a great off-spinner, an explosive batsman, and a professor all-round, Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Thank you. Next up, I've got the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history. I've got Mr. Dependable, Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam, bahut shukriya janab. And finally, ladies and gentlemen, I have the legend of all legends, the president of all presidents, the one and only shining beacon of hope here in A Sports and for Karachi Kings, the man who is an enigma, a saga, very difficult to decipher at times, always shining bright like a diamond. We've got none other than the man himself, Mr. Wasim Akram. Assalamu alaikum and welcome, Wasim. Walaikum salam. Assalamu alaikum everyone. How are you doing today? I'm good. I'm good. My lifestyle is upside down. जी वो बिल्कुल. पंजाबी में कहते हैं तौर पर घूमे हुए ने मेरे because वो रात को 2-2:30 बजे यहाँ ख़त्म करते हैं. By the time you go to bed, it's 4 o'clock in the morning. I know. 4:30 and then I'm all over the shop after Yeah. that. But otherwise, all good. कितने बजे सोए हैं आप कल, सर? सैरी करके सोए हम. वो तो मुझे पता है, लेकिन कितने बजे सैरी सुबह करके? 6:30. Foreign? 6:30 is not for सैरी is at 5:24. Yeah, but उसके बाद थोड़ा टाइम देते हैं ना, थोड़ा फूड जो है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए फिर सोएं. Yeah. And Hafiz, any golf for you today? जी. की? वो जरूरी है. वो जरूरी है. टाइम भी तो किल करना He's है. playing with the champions, man. I know. Yeah. जोहर पढ़ के चला जाता हूँ, थोड़ा सा जिम के बाद फिर ये. सीधा golf पे. Unbelievable. And Misbah, how was your day today? So But ठीक है, okay. समझ आ गई सब. As usual, so okay. You're looking fresh, Flesh. buddy. Nहा धो के flesh. Appreciate it. And a good iftari we just had. You guys did. Yeah, I know. But you did. I had one bite of I don't know मालपुरा. पंजाब में उसे क्या कहते हैं, वहाँ मैंने नहीं खाया ये डिश जो मालपुरा. वो मीठी होती है चीज़, इट्स लाइक मलाई साथ पे और साथ में इतना वो Pancakes सा होता है. पूरी की तरह पैनकेक मीठा थे. I had one bite, it was so sweet, and he had 2 of them. 3 of them. Full of it उसको or आया the हुआ bites? sugar rush. I have total sugar बच्चों को rush. नहीं आ जाता sugar rush. All right, with the sugar rush. All right, folks, let's get down to the business of the HBL PSL 9. Yesterday was a game. It was the 2 table toppers that collided. It was Multan Sultans taking on Peshawar Zalmi. और कल की जो टीम जीतनी थी उससे सीधा फाइनल में जाना था. And yesterday it was Multan Sultans that won this one, and they are through to the finals. But look at that match summary. Peshawar Zalmi, Babar Azam won the toss and batted first. 146 for the loss of 7 in their 20 overs. Babar again playing a captain's knock, 46 or 42 deliveries. He had to anchor yesterday because of the fall wickets around him. Cadmore there contributing 24, Haris 23. He got a start, Haris, but just couldn't carry on with it. Osama Mir looking really good, 2 for 16 in his 4 overs. Jordan also picking up 2 and looking good. Mohammad Ali, he is a special bowler and has got a long career ahead of him and will serve Pakistan at some point. And we really hope that he flourishes more. Nabaz picking up 1 for 21. Multan Sultans in response finished it up really quickly. It was Yasir, the young gun, who Wasim Akram said this is his opportunity, this is his stage, and he delivered the goods yesterday. That half century of 37 deliveries. Usman again making an impact with his 36, and then of course it was Ifti Mania down the order. Look at that. Look at that strike rate and look at what he did. I mean, he's just explosive, and we've never seen him this, explosive in a long time. So it's really great to see that, because days ahead, Pakistan goes into some series and then the World Cup, and we really want Ifti to be looking that good as he is there. Congratulations to Multan Sultans. They've won this one by 7 wickets. So आइए जरा road to the final पे भी एक दफा नजर डाल लेते हैं, because now Multan Sultans, as you see on this chart, are through. They are already in the finals. Peshawar Zalmi now are waiting now for the second eliminator. Now we have the first eliminator tonight. यहाँ से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी से, which is eliminator number 2, और वहाँ पे जो टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल में मुकाबला करने की मुल्तान सुल्तान्स के साथ. So that's how it is all loaded up. Yesterday's game, वसीम, हमने कल भी बात की, it promised to be
a spectacular game because you have two Yeah, two fantastic teams. top teams. You have Peshawar Zalmi and Multan Sultans. But in the end, it became quite flat. Yeah, it became quite one-sided, very timid performance by Peshawar. Although I think they won the toss, didn't they? Ji, Peshawar, and Babar they won the toss. elected to Bat. bat first, and ऊपर से wicket गई है उसके बाद they all got stuck. They were in between all the way. और हमने बात की कल लेंथ में भी कि जो प्लेइंग 11 थी, जो पॉल वॉकर को उन्होंने खिलाया है वो गलत खिलाया है। उसकी जगह कोई लोकल खिला लेते हैं, या वो आप जो ओवरसीज बता रहे हैं उनका है एक मोजली है, यू नो ही कैन गिव यू ओवर्स एज वेल। सो या काफ़ी गलती हुई, बट आई होप दे लर्न फ्रॉम इट एंड दे रिकवर फ्रॉम इट बिकॉज उनका 2-1 दिन में फिर मैच है। बट हाँ, कल मैच है उनका, एंड बट इन जनरल दे हैव टू forget their performance what they did yesterday. Yeah. And congratulations to Multan. They played proper cricket, planned, and everything worked for them in the end. Yeah, their plan has been just absolutely on the dot. मिसबा, कल के मैच के बाद पेशावर ज़ल्मी कैंप इस वक्त क्या प्लानिंग कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या चीज़ें उनको फौरी तौर पे एड्रेस करनी होंगी बिफोर दे गो इनटू द सेकंड एलिमिनेटर? आई थिंक डेरिन सैमी ने भी कहा है कि इन द मिडल ओवर्स एक्चुअली इंटेंट नहीं थी। पावर प्ले में उन्होंने इंटेंट शो की, दे स्कोर्ड गुड, एंड देन सडनली जब विकटें गिरी है तो बिल्कुल ही शटर डाउन किए, कुछ ज़्यादा ही लंबा शटर डाउन हो गया। उसके बाद फिर वो जो 170 का एक स्कोर हम देख रहे हैं वो नहीं स्कोर कर पाए उतना, तो वो ऑलवेज यू आर ऑन द लूजिंग साइड जब आप वो एक जो पार स्कोर है वो नहीं करते। आई थिंक कि सबसे बड़ा जो इनका प्रॉब्लम है वही है कि नंबर 3, 4, 5 आउट ऑफ फॉर्म है, रन्स नहीं कर रहे, हारिस रन्स नहीं कर रहा, उसके बाद हसीबुल्ला रन्स नहीं कर रहा, हेवीली डिपेंडेंट ऑन बाबर आजम एंड सैम अयूब, उन पे भी अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है। कल की इनिंग जो बाबर की थी वो शो कर रही थी कि वंस सैम आउट हुआ है सडनली 2 और आउट हुए हैं और देन दे हैव टू बेसिकली रीबिल्ड। तो ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा बंदा आके उनको अगले मैच में परफॉर्मेंस करके दे सकता है। जी हाँ, हफीज़, कल बाबर की इनिंग्स देखो, फिर ही इज़ लाइक अ रन मशीन, वे अहेड ऑफ द रन्स देन एनीबडी एल्स इन दिस PSL 2024 एंड लुकिंग गुड, यू नो, बट येस्टरडे इट सीम्ड लाइक ही वाज एक्चुअली फोर्स इनटू अ शेल, थोड़े से शेल में अपने चले गए थे और फंस के खेलना पड़ गया उनको जब विकेटें गिर रही थी हर तरफ। इस पे तो कल हमने बात की है और सेम बात आई थिंक सैमी ने भी अगर बात की है, मैंने उर्दू में की, उसने इंग्लिश में कर दी होगी। बात तो वही थी कि आप लंबी देर तक मिडिल ओवर के अंदर वो क्वाइट नहीं रहना चाहिए था ना। वो ठीक है, विकेट आपके सामने आगे पीछे गिरें, थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल करते हैं उस प्रेशर को या उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन आपको एक्सेलरेट करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट 120 बॉल्स। अगर आप टू लॉन्ग कर जाते हैं अपने आप को एक्सेलरेट करने में, तो फिर आप हमेशा वो जो 15 रन शॉट है ना, कि मैं हमेशा आप इस पूरे टूर्नामेंट में निकाल लें, जो कप्तान आया उसने आके हमेशा एक सबसे पहला जो सॉफ्ट कॉर्नर या एक उसने इल्ज़ाम लगाया, वो लगाया 15 या 20 रन शॉट थे। वो जब आप खुद खेल रहे हैं और चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, उसी वक्त तो आपने फैसला लेना है कि हमने 15-20 रन शॉर्ट रहना है या हमने पार रन को टच करना है। सो यू प्लान अकॉर्डिंगली। आई थिंक कि कल नॉट ओनली बाबर, रेस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स ऑल्सो दे वर टिमिड। जैसे कॉलर, उसकी टॉम कॉलर की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वी ऑल नो ही इज़ एक्सक्लूसिव बैट्समैन। तो अब वो ऊपर नंबर 3 पे खेले, येस ही ट्राइड, दे ट्राइड 1 or 2 गेम्स, लेकिन अगर वो ऊपर खेलता है तो वो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। और आपने देख रहे हैं कि हारिस अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आसिफ अली को बाहर बिठाया हुआ है, विच इज़ ऑब्वियसली देयर प्लानिंग, वी कैन नॉट फोर्स देम। हम तो एक सजेशन दे सकते हैं कि आप क्यों ना इस तरीके से खिला लें टीम को जो आपके काम आ जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर देयर टू मेक अ बेस्ट डिसीजन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं जाऊँ तो मुल्तान सुल्तान एक कंप्लीट टीम के तौर पर नज़र आए कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जहाँ की भी कंडीशन मिली, उनके पास उनके ह्यूमन रिसोर्स पूरा था, उन्होंने अपने प्लेयरों को वेल यूटिलाइज़ किया। दैट्स द रीज़न दे आर टॉप ऑफ द टेबल और आज वो फाइनल में भी बैठे हैं। Absolutely. Usama Mir has been such a big key for Multan Sultans throughout this HBL PSL 9. Except for that one game जो Islamabad United के खिलाफ, he has been really good. Very different Usama Mir we're seeing, just like a very different Babar Azam we're seeing in this HBL PSL. जी बिल्कुल। और जिस तरीके से वो पिंडी वाला मैच, आई थिंक हार्ड था स्पिनर्स के लिए, बहुत अच्छे पिच पे वो मैच था, छोटा ग्राउंड था और एल्टीट्यूड पे वहाँ रन्स बनते हैं, समटाइम आपको मार पड़ जाती है। लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट सबसे अच्छी चीज़ देखने की थी, कंट्रोल बहुत बेहतर हुआ है। कल जो है ना पिच इतना ज़्यादा भी टर्न नहीं ले रहा था, लेकिन आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जो भी कंडीशन इनको मिली, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग भी, इनको बाउंस मिलता है। ये बॉल कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं था, कोई आम बॉलर बॉल करे, क्योंकि इनकी हाइट है, बाउंस लेता है, वो मिस क्यूट की सीधा थर्ड मैन पे चला गया। तो आई थिंक थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो देखने वाली चीज़ है, यू नो, बीच में अब 4 ओवर करते हैं, 2-3 बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलीवरीज कर रहे हैं।
लेकिन ये कंट्रोल की वजह से इनकी बॉलिंग में बेहतरी आई है, विकेट्स भी ले रहे हैं, लेग स्पिनर विकेट्स लेता है और जब आपकी कंट्रोल बेहतर होता है तो आपका इकोनॉमी रेट भी बेहतर होता है. I know he's looking really good. Wasim, let's talk about the management of Multan Sultans because they have been. There's like a huge contingent that they have. They've got Mohammad Wasim there. They've got Abdul Rahman there. They've got the 2 foreign coaches उनकी spin bowling के लिए बाहर से आए हुए. So there's and then of course the input of the franchise owner himself. He's very into the game of cricket, Ali Tareen. They've really put together a great unit, both on the field and behind the scenes. Yeah, they did. And they have a female CEO who's which is also an outstanding thing. It's the first time that we're seeing in HBL. Yeah. Credit should be given where it's due. Yeah. And credit to the whole management of Multan Sultans. Most importantly, their skipper, the way he leads, uses his players, his bowlers. उनकी जो पिक ड्रॉ में जो उनका ड्राफ्ट में पिक्स भी थी वो सारे प्लेयर उनके खेल सकते हैं प्लेइंग 11. हम बार बार ये कह रहे हैं कराची किंग्स की प्रॉब्लम नज़र आई कि कुछ प्लेयर थे जो प्लेइंग 11 में नहीं थे आ रहे तो उनको रखा हुआ था. सो ये कर नहीं सकते आपने अगर लीग चलानी है तो आपको प्लेयर 20 के 20 वो पिक करने हैं जो कि प्लेइंग 11 में स्ट्रेट अवे आ जाएं. राइट. और मुल्तान के जितने भी प्लेयर हैं वो प्लेइंग 11 में आते हैं. सो बैकअप उनके पास अच्छा है. कोई इंजर भी हो जाए, कोई चला भी जाए, कोई आ भी जाए, सो दे आर ओके. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे डन अ ग्रेट जॉब. सो क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम. आई थिंक कि क्रेडिट रिजवान का भी क्रेडिट है, फिर लोकल जो इनके कोचेज़ हैं वसीम हैं, फिर अब्दुर्रहमान है, नोइंग द कंडीशंस एंड द लोकल प्लेयर्स, कौन फॉर्म में है, कौन किस कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है. फिर वो जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर टीम का है वो बड़ा काउंट करता है. जो बाकी मैनेजमेंट उसका ये काम है कि प्रेशर नहीं बिल्ड होने देते, इजी गोइंग है और हर बंदे को अपना रोल पता है. तो आई थिंक वो ओवरऑल अगर अब 4 साल की बात करें, इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली वो अच्छी कर रहे हैं तभी ये परफॉर्मेंस है. अदरवाइज़ आप कोई एक सीज़न अच्छा परफॉर्म कर लेंगे देन आप स्ट्रगल करेंगे. बट द कम्बिनेशन ऑफ द टीम एंड एवरीथिंग, दे आर लुकिंग आफ्टर द टीम वेरी वेल. ये देखें अगर इसमें आप पहले जाएं तो एंडी फ्लावर ने इनके लिए काम किया, अब्दुर्रहमान उसके बाद इस मरतबा हेड कोच के तौर पर सामने लाए गए. वो साथ थे मुल्तान, वो साथ जब से रहे, मुल्तान आई लेकिन है. ऑब्वियसली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इट वाज एंडी फ्लावर. फिर जब से अब्दुर्रहमान आए उन्होंने रोल प्ले किया. जो हार्टली हैं जो इनके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट आई उन्होंने आके अपना रोल प्ले किया. तो थिंक इसके पहले मुश्ताक अहमद थे जी. तो यानी मैनेजमेंट चेंज होने से भी अगर चेंजेस लाइक बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आई, पहले भी ये जीत रहे थे और ऊपर आ रहे थे और अभी भी आई. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनका एक सेटअप फार्मूला कोई ऐसा उन्होंने सेट किया हुआ है जिसके ऊपर जो भी आ रहा है वो मैनेजमेंट भी रोल प्ले कर रहा है और प्लेयर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो दैट इज़ गुड थिंग टू सी और इसको लर्न करना चाहिए दूसरी मैनेजमेंट को. कुछ ना कुछ वो अच्छा कर रहे हैं जिससे चीज़ें बेहतर चल. So interestingly, I think it's Multan Sultans and Lahore Qalandars that remain active throughout the year. There's something or the other that is उनकी going on. अली की अपनी एकेडमी भी तो है साउथ पंजाब साइड लोधरा में. आई थिंक है प्रॉपर वहाँ से बाहर से कोचेज आते हैं, ट्रेन करते हैं. सो दे डू गेट इन्वॉल्व ऑल ईयर राउंड. एंड लाहौर की अपनी एकेडमी है जो लाहौर से थोड़ा बाहर उन्होंने बनाई है. मैंने देखी नहीं. आई बिलीव इट्स रियली गुड. एक चीज़ बहुत अच्छी है इनकी कि ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स का कैंप्स, ये फास्ट बॉलिंग कैंप, स्पिन बॉलिंग कैंप, बैट्समैनों का कैंप ये लगाते रहते हैं. लेकिन इस ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स को बुलाते हैं बल्कि और भी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स जो हैं जो यंगस्टर्स हैं उनको भी वे दावत देते हैं कि वो भी आ जाएं. तो इट्स नॉट कि जस्ट कि वो मुल्तान सुल्तान को सर्व कर रहे हैं बल्कि इन दी एंड उनका ये है कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी हम जहाँ एडवांटेज दे सकें वो दें. और दैट इज़ वेरी गुड टू सी. Yeah, and with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Stay with us. All right, welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports Talk, continued coverage of the HBL PSL 9, and today is another big game. It's another eliminator that we are going to be witnessing here. आइए ज़रा देख लेते हैं आज के मैच आइडेंट को. आज है मुकाबला, आपसे कुछ देर पहले जो शॉट्स आप देख रहे थे, it is between Quetta Gladiators versus Islamabad United. कराची से 9 बजे बराह रास्त ये मैच आपकी खिदमत में. This is the first eliminator now. This is where the story is going to get complicated. इनमें से एक टीम आज घर जाएगी और एक टीम अगले एलिमिनेटर की तरफ बढ़ेगी. So we're going to talk about that. But इससे पहले आइए जरा देख लेते हैं हेड टू हेड. राइट जनाब, ये हेड टू हेड बिटवीन दीज टू टीम्स. इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टोटल PSL तारीख के अंदर 18 मैचेस खेले हैं और देखिए जरा 9-9 यानी कि 9 इस्लामाबाद 9 क्वेटा ने जीते हुए.
2021 से 7 मैचेस हुए हैं, उसमें वाज़े तौर पे बर्तरी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को है, 5 इन्होंने जीते हैं, 2 क्वेटा ने जीते हैं, और कराची में 4 मैचेस हुए हैं जिसमें से 3 जो हैं वो इस्लामाबाद ने जीते हैं और 1 क्वेटा ने जीता है। दैट्स योर हेड टू हेड। वसीम, एलिमिनेटर प्रेशर गेम, बिकॉज यहाँ से गुंजाइश नहीं है। इफ यू गेट इट रॉन्ग टुडे यू आर आउट ऑफ द रेस फॉर द HBL PSL 9 but trophy। as a player, you wait for these moments. इस तरह के मैचेस, इस तरह के मैचेस के लिए वेट because that's what you play for, do and die. We all did. Right. कि यही तो मजा है, यही तो प्रेशर है कि पता हो कि अगर हार गए तो वी आर होम। सारी जो मेहनत 1 महीने से की है वो 5 मिनट में मिल जाएगी। तो देन आपका कैरेक्टर एज अ प्लेयर बाहर आता है कि हाउ टू परफॉर्म इससे ऐसी सिचुएशंस में। वो कई प्लेयर्स होते हैं, नॉट जस्ट, नाम तो नहीं ले सकते, किसी भी स्पोर्ट में देख लें, जो प्रेशर आए तो वो अंदर अपने शेल में घुस जाते हैं। कई प्लेयर्स होते हैं, ग्रेट्स होते हैं, वो आके एक्सप्रेस करते हैं अपना, यू नो, देमसेल्व्स कि they are, and I think this is a time for all the youngsters जो भी PSL या कोयटा में हैं या इस्लामाबाद में हैं, कि this is a time to shine. And this is it. This is it. It's today, it's now or never. For both the sides. जो हारेगा वो घर है और अगला आगे जाएगा। यहाँ से जो 2 मैच जीतेगा, 1, 2, 3 मैच जीतेगा, वो फाइनल भी जीत सकता है। So ऐसे भी आपने सोचा ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए 3 लगातार मैच जीतने हैं आपने। आज का एलिमिनेटर जीतना है, अगला एलिमिनेटर जीतना है और फिर फाइनल जीतना है। Exactly. So yeah, it's a pressure on the team, but top players will come and perform today. Players, the young players की अगर आप बात करें, जैसे नाफे को देख लें आप, इधर से उस्मान तारिक इफ ही प्लेज एज वेल, इब्रार को देख लें, ये यंग लड़के हैं। और अगर आप आते हैं हैदराबाद की तरफ, हैदर अली इस्लामाबाद, आई मीन वो हैदर अली आ गया इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद हैदराबाद मिक्स कर दिया मैंने। हैदर अली ने एक अच्छी इनिंग खेली है। होपफुली ही स्टिल यंग, ही कैन मेक अ कम बैक। दिस इज अ टाइम फॉर हिम टू शाइन। आजम खान हो गया, सलमान आगा हो गया, you know, Hunain Shah ho gaya. So these guys playing this big games first time. So that's what you train yourself for as a sportsman. Absolutely. Misbah, Quetta Gladiators, great start. And then halfway through the tournament, उनकी रेलगाड़ी ऐसी पटरी से उतरी है कि ना पटरी रही ना रेलगाड़ी रही। क्या मसला है वहाँ पर इस वक्त? देखिए, मसला तो पहले दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस जब टीम का सही नहीं होता और जब आपके पास एक ही नंबर के बहुत ज़्यादा बैट्समैन होते हैं, एक्चुअली बैलेंस ऑफ द टीम वो बन ही नहीं सकता। ओपनर 10 में से 8 बैट्समैन टॉप ऑर्डर के, अब उन्हीं में से उनको नीचे भी खिलाना है तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन इट डजंट मैटर। अच्छी चीज़ ये है कि स्टिल दे आर इन द प्ले ऑफ्स एंड नाउ इट्स जस्ट एज वी सेड 3 गेम्स। कोई एक बंदा भी T20 में ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता है कि वो टीम को लेके जा सकता है। 3 गेम्स, 3 इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस एंड दे कैन जस्ट होल्डिंग द ट्रॉफी। सो दैट इज द पॉजिटिव थिंग। किसी भी दोनों टीमों ने, अगर आप सबसे क्वेश्चन है, अगर दोनों टीमों ने कोई चेंज करनी है या चेंजेस करनी है, टुडे इज द गेम इन अ वे, ताकि अगर आज जीतते हैं तो अगले 2 मैचेस में वो सेम टीम के साथ जा सकें। दिस इज द टाइम टू गेट योर बेस्ट प्लेइंग 11 whoever they think is it there to play today. But Wasim, don't you think कि जो for example Islamabad United, they found a winning combination. I think they would not want to touch that. You know, they've delivered. Quetta might have to. Quetta is struggling with their middle order. Misbah ने भी explain किया आपको। उनके जो टॉप रन गेटर हैं वो है अपना साउथ शकील है, जेसन रॉय है, एक के 252 है, जेसन के साउथ के 323 हैं। अगर ये दोनों नहीं चलते खुदा न खासा फॉर कोयटा, एंड देन दे विल बी ट्रबल। नाफे ने सिर्फ 177 रन किया, उसने इम्प्रेस किया है, बट अभी कंसिस्टेंसी नहीं आई उसकी बैटिंग में। लॉरी एवंस इज़ बीन वेरी क्वाइट। कीपिंग में भी वो बेचारा है, कीपिंग करके थक जाता होगा। इज़ अ पार्ट टाइम कीपर जो लग रहा है उसकी कीपिंग से। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ है, ही गॉट सम रन्स, ऑलमोस्ट रन अ बॉल। सो टुडे इज द डे टू वर्ड। आई थिंक एक तो रदरफोर्ड तो आएंगे। ये इसके बाद वो देखते हैं कि if Hafiz is Quetta Gladiators today going to be depending on their batting or bowling? That's first part of the question. Secondly, would they again go for a chase? Because कल फिर चेस के साथ मुल्तान सुल्तान जीती है कराची की पिच के अंदर, कराची के ग्राउंड में, और हम देख चुके हैं कि Quetta Gladiators has not been successful when it comes to chases. देखें, पहले तो कोयटा डोमिनेट किया है सारे टूर्नामेंट में बॉलिंग की वजह से, तो वो तो उनका प्लस पॉइंट रहेगा। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की जब कॉल हुई, थोड़े से टूटे इनकी टीम। उसके बाद दोबारा जब उस्मान तारिक आए तो वो शायद अभी ये बड़ा मुश्किल होता है किसी प्लेयर को इस तरह कॉल करना, बाद में उसका जाना आना।
तो शायद उस दिन ये psychologically साइकोलॉजिकली hurt करता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज, यू हैव बीन थ्रू दिस योरसेल्फ ऑब्वियसली वसीम भाई, आपका पूरा कैरियर स्टेक पे है। Yeah. आपको पता है कि अगर मेरा ये इशू है एज अ बॉलर, एज ए बॉलर अगर है तो आई कैन नॉट प्ले द आप गेम। तो all-rounder एक रात पहले सैयद अजमल सोया था तो नंबर 1 बॉलर था दुनिया का। Yeah. अगले दिन सुबह उठा, कॉल हुआ तो पता लगा कि वो उसके बाद वापस ही नहीं आ सका। Yeah. तो दिस इज दैट डिफिकल्ट। मेरे लिए थोड़ा ये आसान इसलिए होगा कि मैं बैट्समैन हमेशा से था। Sure. तो मेरे लिए मुश्किल नहीं हुई टीम में जगह बनना, मेरे लिए इशू नहीं आया। टीम का कंपोजिशन ख़राब हुआ लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मैं फिर दोबारा मेहनत करके वापस आ गया। लेकिन उस्मान तारिक श्योरली यंगस्टर थे, बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेले हुए, बहुत ज़्यादा इनके पीछे बैक नहीं थी उसकी अपनी क्रिकेट की। उनको कॉल होने के बाद मुझे लगता है मेंटली ही गॉट डिस्टर्ब, और जब वो वापस आए तो ही कुडंट बोल दैट मच, लाइक इवन दो कंडीशन हुई थी, अच्छी बॉलिंग नहीं कर मगर सकी। उनकी लाइन उनसे थोड़ा अब, पीछे गिर गई बॉलिंग। Confidence खत्म हो गया ना, वो यही तो कह रहे हैं कि मोस्टली मैंने देखा है ना 2-3 मैच जो भी मैचेस वो खेले, बोल्ड वेल बट स्टार्ट ऑफ विद मिडिल लेग से करता है वो। मिडिल ऑफ, अगर वो गुगली भी करते हैं तो मिडिल लेग पे जाते हैं बजाय कि वो ऑफ स्टंप से करें जहां से वो यूजफुल हो सके। You mean bowled well. he should end in the wickets, right? Yeah. And that's not happening, right? Go क्योंकि ahead. दोनों जगहों पे जो इनकी अगर आप कामयाबी देखें तो जब अब्रार अकील और उस्मान तारिक ये ट्रायो बना स्पिन बॉलिंग का, तो दैट रियली गिवन देम अ बूस्ट एज ए बॉलिंग यूनिट। आमिर और वसीम इनके पास थे, इन्होंने ट्राई किया हसनैन और सुहेल खान को, बट दे केम बैक टू वसीम विच इज़ फाइन। मसला अब इनका सबसे बड़ा ये है कि रायली रोसो इज़ नॉट परफॉर्मिंग। Right. बैटिंग के अंदर सिर्फ साउथ शकील इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, रॉय इज़ अगेन स्ट्रगलिंग क्योंकि उनकी ये कंडीशन नहीं है शायद। उसके बाद आ जाते हैं नाफे, उमैर बिन यूसुफ और सरफराज। इन तीनों के साथ उन्होंने परसिस्ट किया लंबी देर तक, लेकिन दे कुडंट ब्रिंग दैट परफॉर्मेंसेज इनटू प्ले। अब जब उससे उन्होंने सरफराज को निकाल के लॉरी इवेंट्स को 3 मैच खिला दिए, वी हैव सीन कि वो प्रॉपर कीपर तो नहीं है, Right. कॉम्प्रोमाइज कीपर हैं, Right. लेकिन बैटिंग में भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो वाई नॉट इन कराची कंडीशन एज वी सेड अर्लियर कि आप अपना वो प्लेयर जो इन कंडीशन का बेस्ट प्लेयर है उसको ले आओ, एंड दैट इज सरफराज अहमद। Right. तो ये बड़ा सिंपल सा सिनेरियो था लेकिन वो नहीं कर रहे। रायली रोसो शुड बैट एट नंबर 5, नंबर 6 बिकॉज इफ इज नॉट बैटिंग वेल एट नंबर 3, उमैर बिन यूसुफ कैन प्ले दैट रोल, क्योंकि वो उनकी कामयाबी जितनी भी हमने देखी है PSL में 1-2 मैचेस में या डोमेस्टिक सीजन में, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। अब उनको ये कहना कि वो 5 नंबर को मैनेज करें, यू आस्किंग टू मच फ्रॉम अ यंगस्टर। तो यहाँ पे रायली रूसो को ये समझना चाहिए, दैट्स व्हाट। लेकिन समटाइम जैसे शान ने बहुत लंबा कर दिया था, लेट कर दिया अपने आप को नंबर 3 पे लाने पे, रायली इज डूइंग द सेम थिंग कि वो अपने आप को अगर 5-6 पे ले आएँ जहाँ पे एक ईज डाउन प्रेशर उनको मिले, उनकी शॉट्स लगें, और वही रोल जो नंबर 3 पे उनसे मिस हो रहा है वो उमैर बिन यूसुफ मैनेज कर लें। अब देखना ये है कि वो नाफे और उमैर बिन यूसुफ को ऊपर रखते हैं या उनको फिर वही रोल देते हैं। अगर फिर वही रोल दिया, आई थिंक इट्स विल बी टफ फॉर एनी यंगस्टर कि वो टेक्टिकली मिडिल ऑर्डर का प्रेशर जो है वो मैनेज कर सके। Alright, good point. Azhar, on the bowling side, हमने बात की कि उस्मान तारिक he's come back, वापस आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जिस तरह हफीज़ ने भी पॉइंट आउट किया, वो वैसे बॉलर नहीं लग रहे जो हमने देखा था आते साथ ही जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला था। क्या उसकी वजह से जो दूसरे हम स्पिनर्स हैं, अकील हो गए, उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि एक हमारा जो की कंपोनेंट है और ऑल ऑफ अ सडन स्पिन डिपार्टमेंट का वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गया अचानक, एंड डज दैट ऐड टू द अदर स्पिनर्स प्रेशर? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जब आप 3 स्पिनर खिलाते हैं ना, तो किसी ना किसी को तो मार पड़नी, क्योंकि जब आप स्पिनर से 17वां ओवर 18वां ओवर करवा रहे हैं तो आसान नहीं होता स्पिनर के लिए उस टाइम पे, क्योंकि बैट्समैन जो है वो रेडी होता है, विकेट लूज़ करने का इतना मसला नहीं होता, वो दिलेरी से उस टाइम मार रहे होते हैं। Right. जो मिडिल पीरियड है ना, वो बेस्ट टाइम है जब स्पिनर्स सही प्रेशर डालते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो रहा है, क्योंकि एक बॉलर आपका कॉल हुआ उसके बाद जब वो टीम में वापस आया तो आपको श्योर नहीं था वो कैसी बॉलिंग कर पाएगा। तो आई थिंक कि वो अबरार को भी 1-1, 2-2 ओवर करके करा रहे हैं, इनको भी 1-1, 2-2 ओवर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि यार कभी ये विकेट दिला देगा, कभी वो विकेट दिला देगा। जो उस टाइम पे बेस्ट बॉलिंग कर रहा है पहले उसको पूरी बॉलिंग करा लें। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करते हैं ना ओवर्स, तो किसी भी बॉलर का रिदम नहीं बन रहा। और उस्मान तारिक का सबसे बड़ा, जो वसीम ने बात की थी कि इन टांग पे जा रहा है, वो वाइड ऑफ द क्रीज बॉल करते हैं बहुत ज़्यादा। जो उनका गुगली है, वो जो गुगली उनका मिस्ट्री बॉल है और विकेट टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है, वो अक्सर जब उनकी रिदम सही नहीं होता तो वो फिर टांग पे जाना शुरू होता है। यही बॉल अगर वो ज़्यादा क्लोज टू द स्टंप करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि सामने फिनिश होगा। आई थिंक क्या ये आसान है किसी बॉलर के लिए अगर उसने सारी उम्र क्लोज टू द स्टंप्स नहीं किया? ये टफ हो सकता है, क्योंकि एक्शन के साथ, रिदम के साथ आपकी सारी चीज़ें वो हुई होती हैं, सिंक हुई होती हैं। लेकिन आई थिंक इनको इस पे काम करना चाहिए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे अगर इस क्रीज भी साथ यूज़ करना शुरू कर दें।
क्योंकि जब इन लाइन बॉल पिच होके फिनिश होगा तो जब भी बैट्समैन मिस करेगा ही विल बी इन ट्रबल। और जब आप वाइड ऑफ द क्रीज करें तो अक्सर बॉल जो है वो आपका पैड पे लगेगा भी, तो लेग स्टंप मिस करने के चांसेस ज़्यादा हैं। All right. Misbah, has he been getting any like क्या उन्होंने बड़े कोचेस के साथ काम किया हुआ उस्मान तारिक ने? क्योंकि आपने बताया कि he hasn't played any serious नहीं first class, ये इन्होंने एक आधा सीज़न ग्रेड 2 का खेला है पेशावर के साथ, क्लब क्रिकेट खेले हैं, तो इतनी ज़्यादा इन्होंने काम। अभी ये SPL में थे, मोइन भाई के साथ ही थे उनकी टीम में, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस किए हैं इन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था इनके लिए यहाँ पे आना। Right. होपफुली कि थोड़ा बहुत ये काम करेंगे, थोड़ी पेस भी बढ़ेगी बॉल की, और ये अलाइनमेंट बेहतर होने से थोड़ा टारगेट बेहतर हो जाएगा इनका बॉल करते हुए, दे विल बी मोर इफेक्टिव देन। ये जरा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जर्नी के ऊपर नजर डाल लेते हैं वसीम। दिस इज हाउ क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव गॉन अबाउट देयर HBL PSL 9। ये उनका इनका पहला मैच पेशावर ज़ल्मी से हुआ जो कि ग्लैडिएटर्स ने जीता और अच्छे रन से जीता। फिर लाहौर कलंदर से हुआ, वो भी इन्होंने जीता। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुआ, वो भी इन्होंने जीता। फिर मुल्तान सुल्तान्स को भी इन्होंने डिफीट किया। फिर कराची किंग्स को डिफीट किया। बेसिकली सारी टीमों को इन्होंने डिफीट किया। फिर आगे आ जाए, ये जो 5वां मैच इनके हो गए। फिर ये हाफ ए पॉइंट के बाद टूर्नामेंट के एक जब इनका बारिश वाला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गया, 1 पॉइंट मिला। उसके बाद कराची किंग्स से ये जीते। उसके बाद ये फिर पेशावर ज़ल्मी से दूसरा कराची जीती, किंग्स 1, सॉरी माय अपॉलॉजीज। फिर ज़ल्मी जीती, फिर ग्लैडिएटर्स ने ये लाहौर कलंदर से खिलाफ मैच जीता, एंड देन इनका जो मुल्तान से मैच हुआ तो वो मुल्तान जीत गया। सो एज यू कैन सी क्लियरली हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट समथिंग चेंज्ड फॉर देम. And I'm trying to figure out what that is, because after that it became a very different team. It became the same old Gladiators team. बाकी टीमों ने आई थिंक थोड़ा अभी होमवर्क कर लिया था ना बाय द टाइम आफ्टर 5 गेम्स के मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ऊपर से आउट करने की कोशिश करो साउथ को या जेसन रॉय को, एंड देन पुट देम अंडर प्रेशर। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आफ्टर 5 गेम एवरीबॉडी हम भी यहाँ बैठे इन्होंने भी वो कंडीशन जहाँ पे ये बैटिंग करके 170 खुद कर सकते थे, दे ऑप्टेड टू बोल फर्स्ट, और नोइंग द फैक्ट कि इनकी अपनी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, नहीं परफॉर्म कर रही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बावजूद इन्होंने चेस किए। मैंने ये भी सुना है जो आपका जो स्टाफ होता है, कोच, अगर मैं कोच हूँ या आप कोच थे या मिसबा कोच, या तो आपका जो स्टाफ है उसकी सुनते हो आप, बिकॉज लोकल जो है सुना है वो शेन वॉटसन किसी की नहीं सुन रहा। So मैं एक चीज पूछ रहा हूं, so is my question is understands कि जी मुझे जो चाहिए मुझे वो उसके मुताबिक काम करना है। But sometimes you need local knowledge. You need all the local knowledge, bhai. If you don't have the local knowledge, but so you've got Shane Watson in that camp, you've got Sir Viv Richards there, you've got the Silver Fox of the Pavilion, Moin Khan there. You have all those people in the Quetta Gladiators dugout. Sir Viv can only give them the confidence, motivation. bit of chat with batters, technicalities में सर विव तो नहीं पड़ेंगे ना। टीम डायरेक्टर मोइन भाई हैं, हाँ मोइन भाई हैं, कितने अब ये क्वेटा आ रही तो मैं तो एक ही बंदे को वो करूँगा, कॉल करेंगे ना, कॉल नहीं जिस क्लॉल भी करूँगा, ब्लेम भी करूँगा। मोइन किंग, यस, हम मिलकर उनको कॉल करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने भी आने से पहले किया। अगर कोच होते फिर भी आप उन्हीं को करते, डायरेक्टर हैं फिर भी उन्हीं को करते, जैसे आपको करते हैं सारे, जैसे मुझे करते हैं, तुसी बदला लेना। तो वही ना, सो अभी मेरी आते हुए बात हो रही थी, लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम डिफेंस टू कराची साइट एरिया पे, तो है तो वो शरारती, जब मैंने बात खत्म हुई तो जाते हुए मुझे क्या कहता है फोन पे, पाना शेरशाला रास्ता ले लेना। बिकॉज लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे ये पवेलियन, सो मोइन को मैं पिक करता था, मेरे घर के साथ ही रहता है अगली सड़क पे। अब जब आ रहे एक रास्ता होता है ना बंदे का, एक रेगुलर रास्ता है, इससे जाना है बस, कभी मुझे इधर से ले जाए, कभी इधर से ले जाए, कभी नीपा चौरंगी से ले जाए, मैं क्यों की कर रहे हैं एक रास्ते में ले जा, हेंस वी कॉल हिम कीड़ा। The Silver Fox for me, Keeda for Wasim Akram. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us, please. ये बॉल आपसे ले ली जाए, ठीक है ना, इस बार बॉल ऐसे सुट दी, ऐसे सुट दी। अब आज पता चल गया मुझे, याद रखी, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होता ना, वो याद रखी नहीं, अगर वो आपके प्रेसिडेंट हैं तो मिसबा के भी हैं। हाँ, आई नो आप बनाए वीडियो हमारे खिलाफ। ओहो, अच्छा, आज उसे बनाया बदले का वीडियो। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस ऑफ द HBL PSL 9। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्वेटा ही की बात जो है वो कैरी ऑन करते हैं। आखिरी 5 ओवर्स में मिसबा देयर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, लो स्कोरिंग रेट इन दिस HBL PSL 9।
और फिर रदरफोर्ड बीच में से चले गए थे, अब रदरफोर्ड दोबारा अवेलेबल हो गए। हाउ West Indies is not up the road. It's a I don't long understand. journey. I don't know if he's going to West You Indies. have to go back to England via Dubai, then from there another 13 hours to and I'm thinking Guyana. fatigue. I'm thinking the fatigue that he must be going through, the jet lag he must be going through. If he's Yeah. going all the way, सवाल ये पैदा होता है पता ये करने के वो all the way West Indies जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आज पता लग जाएगा हैं? आज पता लग जाएगा पता जब लग final जाएगा, आएंगे। बिल्कुल जी। ये जरा आज इनके ग्राफिक्स हैं ये टॉपिक 5 के आपके सामने। ये जनाब आप देख सकते हैं आपके सामने आखिरी क्वेटा 5 ओवर relying की on बात Rutherford hitting in the last 5 overs is very important. Look at that, Multan Sultans, Iftikhar Ahmed, 93 balls में उन्होंने 14 sixes लगाए and that's, look at that Iftimania power right there, because look at the difference between everybody else and him. And there's Rutherford in 46 balls, he's hit 5. So that's, you know, yeah, and then there's Jandad Khan as well in that, Risa Hendricks as well, and Wender Dusen, of course, and just fantastic stuff. Yeah, how important is Rutherford for Quetta Gladiators today? And if he doesn't perform, how bad will it be for Quetta Gladiators? देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि 20 के स्क्वाड में 10 बैट्समैन हैं इनके पास, सिर्फ 2 जेन्युइन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं जिनमें से एक रदरफोर्ड है और दूसरे सरफराज हैं, बाकी 8 के 8 टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, टॉप 3 में। तो यहाँ भी 21 तोपों की सलामी बनती है। यही वजह है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्टैट आ रहा है 16 से 20 वाला भी, वो एंड पे तो आपके बॉलर खेल रहे होते हैं तो स्टैट कहाँ से, आपको तो टोटली रिलायंट हैं। आप पहले 3 प्लेयरों पे वो करेंगे तो आप जो है मैच जीतेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कराची में, बड़ी बाउंड्रीज, स्लो पिच, 7 to 15 overs आर द की। इसमें अगर आपके पास प्लेयर नहीं है जो उस सिचुएशन को हैंडल करें, रिस्क फ्री क्रिकेट, कंट्रोल क्रिकेट खेल के 7 and over 8 and over करेंगे, तो वही टीम इम्पैक्ट डालेगी, वही टीम उसी के जीतने के चांसेस हैं। और ये कौन करेगा क्वेटा से, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इवन रदरफोर्ड के लिए भी यहाँ पे सामने वो मारते हैं ज़्यादातर 80 की बाउंड्री है, कॉर्नर जो कॉर्नर है वहाँ पे 77 75 की बाउंड्री, तो सिर्फ उन पे भी मैच छोड़ दे रहा है एंड पे। ठीक है उन्होंने मैच जिताए हैं, सारा कुछ किया, बट इस ग्राउंड में मेरे ख्याल में बाकियों को भी कहीं ना कहीं मिडिल में परफॉर्म करना पड़ेगा। All right, let's take a look at the numbers game. Here's the numbers game for you on your screen. Those are lowest totals in HBL PSL 2024, and look at that. It's Quetta Gladiators 106 पे आउट हुए थे अभी मुल्तान के खिलाफ, and then it's game Quetta Gladiators 118. Then it's again Quetta Gladiators 120, and then it's the Karachi Kings, and then Islamabad United, and that's your numbers game. बड़े अरसे के बाद एक स्टैट देखा जहाँ पे लाहौर कलंदर नहीं नजर आया मुझे। नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर की अगर आप बात करें तो उनके बहुत से मैसेज आखिरी बॉल आखिरी आई ओवर थिंक 3 से 4 मैचेस उनके इसलिए लास्ट काफ़ी बॉल पे मरतबा खत्म हुए। वो लकी अनलकी के दरमियान जो है उनका नहीं, season ये तो वो वाला लो स्कोर वाला स्टार्ट है ना, अच्छे स्टार्ट में हमें नजर अच्छे आएगी। स्टैट में तो हर जगह ऊपर ऊपर नजर आते हैं आपको। जीत नहीं सके। लेकिन अगर कोयटा की तरफ जाएं, देखें हमने पहले बात की कि एक मिडिल ऑर्डर जो हमें यहाँ पे बैठ के पहले दिन से लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी नहीं है। उसके बाद फिर इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है 8 9 10 11 बिल्कुल ही पैदल, और लग ही नहीं रहा था। वो ऐसे लगता था वो वसीम भाई को भी याद होगा कि वो पीटीवी की नशरियात लगती थी ना, तो जब नशरियात ख़त्म होने वाली होती थी तो मिली नगमे स्टार्ट होते थे। तो ऐसे ही लगता है कि 9 8 9 10 11 मिली नगमे आ गए, एकदम से आएंगे, एकदम से शटर बंद होगा और टीवी बंद हो जाएगा। तो इनकी बैटिंग के अंदर वो जो चीज़ थी वो नज़र नहीं आती आपको। He's got a point there in his defense. इसी की वजह से आप देखें कि कहीं पे Nice analogy, man. Appreciate it. जो रेजिस्टेंस है इनकी बैटिंग में वो नज़र नहीं आई। वंस इनका टॉप ऑर्डर उड़ा, टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, या वो जिस वक्त भी आउट हुआ तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर कोई भी आके कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। दूसरी टीम्स की अगर हम बात जाएँ तो उनके पास 5 और 6 के ऊपर प्लेयर, जैसे हम अगर मुल्तान की बात कर लें तो वहाँ मुल्तान की तरफ से इफ्तिखार ने परफॉर्म किया, नीचे जाए क्रिस जॉर्डन, विली, उसामा मीर, दे ऑल यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट व्हेनेवर इट रिक्वायर्स। इनकी टीम का मसला ये है। इस्लामाबाद में चले जाएँ, फ़हीम अशरफ ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, इमाद लास्ट मैच जितवा के चले गए, जितवाना किसी भी मैच को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
इनके पास मसला ये है कि जो ये अपने तमाम मेन प्लेयर हैं ये इनको ऊपर भेजते हैं, जब वो आउट होते हैं तो फिर वो प्लेयर जो ऊपर भी खेल सकते हैं, जब उनको नीचे का रोल मिला, जिसमें मैं उमैर बिन यूसुफ की बात करूं या सरफराज टोटल आउट ऑफ फॉर्म हमें नज़र आए, उनका भी कॉन्फिडेंस इस वक्त नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप अगर एक चेंज करें, उमैर बिन यूसुफ और नाफे को ऊपर भेजा जाए जस्ट टू प्ले, और जो सरफराज और जो रायली रोसो एंड रदरफर्ड हैं ये मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब फैसला तो उन्होंने लेना है कि व्हाट दे थिंक हाउ दे वांट टू प्रोसीड इन दिस गेम, लेकिन मुझे लगता है कि लॉरी वेंसेस सरफराज अहमद को मैं पिछले मैच भी कहा था कि ही कैन प्ले अ बेटर रोल स्पेशली इन कराची कंडीशन। एंड इनकी जो टेल है, जैसे आपने बात की 9, 10, 11 दे आर प्रॉपर पैदल, आई मीन प्रॉपर पैदल, एक होता है पैदल, एक होता है प्रॉपर पैदल। अभी इसमें सिर्फ अकील है जो वैल्यू ऐड कर सकता है, 7-8 पे आता है या, बट आमिर यूज्ड टू व्हेन ही केम इनटू क्रिकेट, उसका टेस्ट क्रिकेट में 70 भी है, वनडे में भी लास्ट विकेट की पार्टनरशिप लास्ट आई मीन रिटायरमेंट इसका जो भी प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद जब ये टीम में था, वो ये इधर को जाना शुरू हो गया था स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ, वो लेग अंपायर की तरफ भाग जाता था। और बाकी इब्रार को भी इम्प्रूव करने के लिए इस डे एंड एज में वसीम भाई एक्चुअली जब आप देखें T20 क्रिकेट में टाइम नहीं है आपके पास, कोई भी बैट्समैन जो एक स्पेसिफिक रोल जिसमें उसने कभी खेला नहीं है उसको अगर आप कहेंगे प्रेशर गेम्स में यहाँ पे आप आएंगे, आपके लिए डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है। आप जो जानते हैं कि हाँ चौथे पे कैसे खेलना है, पांचवे पे कैसे खेलना है, छठे पे यूज टू हैं और एक आपकी रिप्यूट बनी हुई एक्स फैक्टर है, वहाँ आप परफॉर्म करते हैं। ये कभी भी नहीं होगा कि आप ऊपर से उठा के डाल दें जी खेल लेंगे, ठीक है अच्छे प्लेयर हैं इनको, वो प्रेशर में जब भी आएंगे वो यूज टू ही नहीं, वो नहीं खेल पाएंगे। खेल वो ही रहे हैं जिनके नंबर ऊपर नीचे हुए हैं, जो इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो कि कहीं ना कहीं दुनिया में जब भी खेले हैं तो नंबर ऊपर नीचे वो खेले हैं, इसलिए वो एडजस्ट कर जाते हैं। अब हफीज़ की बात बिल्कुल ठीक है कि जो अभी आ ही रहा है, जिसका पहला PSL है, अभी उसने मैचेस नहीं खेले, उसको आप उसकी वो जो नंबर है उससे हटा के आप मिडल में जो सबसे मुश्किल जगह है कि हाँ जी आगे परफॉर्म करो, नहीं होगा। इसीलिए ये सारे जो स्टैट्स आ रहे हैं, जो परेशानी इनको आ रही है, सिर्फ इसी वजह से आ रही है। अजहर लेट मी आस्क यू दिस, अब चूंकि ये डू और डाई सिचुएशन आ गई है, एलिमिनेटर है, और हमने देखा कि रायली रूसो और ये जो ऊपर के टॉप ऑर्डर है क्वेटा ग्लैडिएटर का, वो स्ट्रगल कर रहा है, ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आज तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ जाएगा? और इस मैदान के अंदर जहाँ पे पिछले मैच में सिर्फ 3, जो मुल्तान का और पेशावर का मैच हुआ है उसमें सिर्फ 3 सिक्सेस हुए हैं, उससे पहले जो आखिरी मैच कराची किंग्स का हुआ स्किप, उसमें 1 छक्का लगा है उस दिन। सो दिस डजंट दिस काइंड ऑफ क्रिएट टू मच प्रेशर ऑन दीज बैट्समैन, यार वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म, दिस इज नाउ एन एलिमिनेटर? आई थिंक प्रेशर तो होगा, लेकिन यही एक्सपीरियंस प्लेयर का फ़ायदा तभी है उसको ऐसी सिचुएशंस में पहले भी आए हुए हैं, दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ओनली इज के कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, और उसके बाद आप जिस तरह ये हम सब डिस्कस करें, इन्होंने भी डिस्कस किया होगा, बी ओपन, बिकॉज आप जब बहुत रिजिड हो जाते हैं ना कि यार मैं तो यही करता हूँ, मैं यही करूँगा, एट टाइम्स आपको टीम कम्बिनेशन को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। फिर आपको एक प्लान नज़र आएगा, प्लान में आपके रोल्स नज़र आएंगे, फिर आप सिर्फ वो रोल प्ले करेंगे, आपका दिमाग, आपका जो सोच है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से निकल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग बैठे होंगे, उसके अंदर आप जो फैसले लें, जो प्लान बनाएं, उस रोल्स जो डिफ़ाइन हुए होंगे, यार अब रायली चलो नीचे आ जाओ, ये रोल प्ले करो, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसका रोल जब दिमाग में चलेगा तो आई एम श्योर कि उसकी जो परफॉर्मेंस वाला प्रेशर है ना, वो थोड़ा सा साइड पे होएगा, वो कि यार मैंने ये रोल प्ले करना है आज। तो आई थिंक कि थोड़ा सा चेंजेस करनी चाहिए, राइट चेंजेस करनी चाहिए, क्योंकि आपका काम नहीं कर रहा, पिछले पूरा टूर्नामेंट आपसे जो है परफॉर्म नहीं हुआ। So ये वही 11 के साथ जाएंगे आपके ख्याल में, आमिर एंड मोहम्मद वसीम on this pitch, और 3 spinners। अगर उस्मान तारिक आते हैं, लाइक वो उसने पिछला मैच भी खेला है, तो वही इनको स्ट्रेंथन करता है पूरा, क्योंकि हसनैन और सुहेल को देख लिया कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि लास्ट मैच जब सुहेल खान बाहर हुए थे, नहीं खिलाया गया, उसमें उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए। अच्छा, तो आई थिंक अगर उनको भी लेके आते हैं उस्मान तारिक की जगह, तो वो भी ठीक है। लेकिन इनकी नंबर 3 और नंबर 4 को सेटल होने की ज़रूरत है, जो मैंने बात की। उमैर बिन यूसुफ शुड बैट नंबर 3, नाफे 4, रायली नंबर 5, सरफराज 6, इनको वेरी आप कर सकते हैं, और फिर रदरफोर्ड 7। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। एक चीज़ उनको याद रखनी चाहिए, इनके टीम के अंदर मैच विनर्स मौजूद हैं। ये ना सोचे कि यार पीछे में हम 100 120 पे आउट हुए, 106 पे आउट हुए हैं, तो हमारा टूर्नामेंट बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये देखें कि आपके टीम के अंदर जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव्स देखें कितने ज़्यादा हैं। जेसन रॉय हैं, एक अपने
ऑन हिज ओन मैच जिता सकते हैं, रायली रोसो जिता सकते हैं, साउथ शकील। फिर आपकी बॉलिंग ऐसी है, अगर आप 170 कहीं पोस्ट कर गए तो दूसरी टीम को बहुत मुश्किल होगी। एक्चुअली पोस्ट करने का ही तो ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। कई लोग ये समझते हैं कि यार T20 इज ऑल अबाउट चेजिंग, यार जो टॉस जीतो बॉलिंग करो, आपको टारगेट, लेकिन टारगेट जब बड़ा आ जाएगा, आपकी पहुंच से ऊपर छलांग मारनी पड़ेगी आपको, तो मुश्किल होगी जब आपकी बैटिंग डेप्थ ज्यादा नहीं है। और छलांग वैसे भी नहीं लगती अगर घुटने में दर्द हो, यू अंडरस्टैंड। मैं एक और चीज और दोनों में एक मिनट यू अंडरस्टैंड, यू आर वेरी मीन, एक मिनट, और दोनों में हो तो बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने की, जैसे हफीज़ बात कर रहे हैं कि नंबर 3 पे उमैर बिन यूसुफ खेलें, आई थिंक अगर सरफराज आते हैं, लॉरी एवंस की जगह तो रदरफोर्ड ही आते हैं टीम में जी। और फिर कीपर को अगर आपने खिलाना है तो देन ऑब्वियसली आपको या उमैर बिन यूसुफ को ड्रॉप करना पड़ेगा या आपको नाफे को ड्रॉप करना पड़ेगा। सरफराज तभी टीम में आते हैं क्योंकि इनके पास तो बॉलिंग ऑप्शन ही 5 हैं, बॉलर तो कोई कम कर नहीं सकते। राइट, तो ये भी एक चीज़ होगी कि किसको आप, मुझे लगता है कि नाफे को अगर खिलाना ही आपने तो उसने 3 पे ही परफॉर्म किया, फिर 3 पे खिलाएं उसको और नीचे आप एडजस्टमेंट करें जो भी आपने करना है। उमैर बिन यूसुफ ना खेले और सरफराज खेले, आपको कीपर अगर रदरफोर्ड ने तो खेलना ही खेलना, उसने आने ही आना, तो उसने लॉरी एवंस की जगह जाहिर आएगा या फिर किसी लोकल की जगह आएगा, तो फिर उनके आप नाफे से कीपिंग करा सकते हैं। वसीम, एक looks like the underlying theme throughout this HBL PSL 9 has been a middle order crisis in almost every batting. जो पाकिस्तान टीम में नजर जो आता है पाकिस्तान आपको, टीम में वही नजर हमें आता है। पाकिस्तान के So every team has a lot of openers and one down players, but it seems like because लेकिन like इसमें Hafiz इस्लामाबाद said- यूनाइटेड की टीम सबसे मैं अब बैलेंस उसी- है, क्योंकि नहीं उसकी बैलेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजम इज जी। अ प्योर नंबर 5-6 बैट्समैन। Yeah. अगर इमाद की तरफ आ जाएं, फ़हीम की तरफ आ जाएं, तो वो नंबर 6-7 पे ही क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे आई ही। थिंक अगर इसमें जाएं मिडिल ऑर्डर में, लो मिडिल ऑर्डर में, तो इस्लामाबाद की टीम सबसे बेहतर नजर आती है। सबसे वह जेसन रॉय के ऊपर जस्ट क्विकली, मिसबा क्या उनकी वह सुना है कि वो जो अगला एक लीग का बड़ा लीग आती है हमारे प्रोस में IPL, उससे ही इज काइंड ऑफ ही सेड ही वोंट बी अवेलेबल फॉर इट। व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम, एनी आइडियाज? आई हैव नो आइडिया क्यों वहाँ से उन्होंने वो किया, लेकिन आई थिंक यहाँ पे वो रेगुलर खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, पर लास्ट 2-1 सीज़न से उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जैसे वो पहले कर रहे थे। So maybe he doesn't want कि मैं अभी जाऊँ IPL में और फेल हो जाऊँ, and you know that just to kind of make sure that he नो goes. आइडिया, आई हैव नो लेकिन आइडिया personal ऐसी कोई reasons हो बात, सकती हैं। पर्सनल personal reasons भी हो रीजंस सकती कि हैं। आपका लंबा हो गया है सीज़न घर से बाहर, तो आप इस वजह से एक शायद मेंटल ऑफ स्टेट लेना आती चाहते है हैं। जहाँ पे आपको लगता बट है आई कि you need some rest। थिंक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे, जो भी टॉप का प्लेयर हो, एक उनकी रिप्यूट है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर हिम Right. कि वो उस तरह की कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल सके। नाउ इट्स द टाइम जब आपके बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे अजहर ने बिल्कुल सही बात की, ये ऐसा प्लेयर है कि ऑन इस डे ये ऐसी इनिंग खेल सकता है कि बिल्कुल दूसरी पूरी टीम साइड पे हो जाए, ऐसा कुछ 100 कर दे, और ये पहले करते हुए आए हैं 70, 80, 90 Right. ऐसा इम्पैक्टफुल करें, तो दैट्स व्हाई ही इज़ प्लेइंग एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन क्वेटा नीड्स हिम द मोस्ट। और आज आई थिंक जो इनके मैच में रदरफोर्ड हैं, ये हैं सऊद शकील, इनको ही इस टीम को कैरी करना पड़ेगा। All right, with that we're going to take. Sorry, go ahead, Azhar. Before I go to break. सॉरी, जो जेसन रॉय ने जो पिछले मैच में किया था, जी। आई फील के प्लेइंग कंडीशंस के अंदर इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसको कोई फ़ाइन नहीं हुआ। यू नो जो भी इफ्तिखार ने किया, आई डोंट नो, भी हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या उसको फ़ाइन हुआ, लेकिन जो ये उनकी नींद लगा दी, लेकिन जो उसने बाउंड्री लाइन के बाहर जाके चीज़ें थ्रो की हैं, Thank you. Just इस जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो रोल मॉडल टीम में भी और जो टीवी पे देख रहे हैं, अब वो क्लब का मैच खेल के आउट हो के आएंगे, ये हरकतें करेंगे। जेसन रॉय ने की तो आई थिंक कि ये चीज़ एड्रेस करनी चाहिए प्लेइंग कंडीशन में, अभी तक शायद नहीं है, जिसकी वजह से उसको फ़ाइन नहीं हुआ। कि जब टीवी पे आप रोल मॉडल के तौर पे सामने आते हैं, तो प्लेइंग कंडीशन में इस पर भी फ़ाइन होना चाहिए। इस पे होना चाहिए, एंड आई थिंक वो मेरा एक सवाल इससे क्विकली आपसे बनता है, एंड बिकॉज हफीज़ यू बीन प्लेइंग लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, इफ़ यू हैड डन दिस एट इन एनी अदर लीग, सी फॉर एग्जांपल कैरेबियन प्रीमियर लीग में आप ये करते इस किस्म की हरकत, या कहीं और खेलते हुए करते, तो हाउ वुड इट बीन टेकन? वुड यू बीन फाइंड और देखें, जो जितनी भी लीग्स हैं ना, वो ICC रूल्स रेगुलेशंस के अंदर खेली जाती हैं। ठीक है। नॉर्मली ICC जब आप इवेंट खेलते हैं, कोई भी इंटरनेशनल बायलैटरल मैच खेलते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर Right. आप ग्राउंड के अंदर या ऑफ द ग्राउंड अगर आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों, आप कुछ ऐसा हरकत करें जो कैमरा कैप्चर करे, जो गलत हो, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ हो, तो आपको पेनल्टी उसको उठानी पड़ती है।
All right, with that, we're going to take a break here, but when we come back, we're going to take a look at the Islamabad United team and talk more about the game that is ahead. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of HBL PSL 9, and it is eliminator number 1 that we are gearing up for. It's Quetta Gladiators clashing with Islamabad United. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq, and the great Wasim Akram. Right? तो हम बात कर रहे थे Quetta Gladiators के हवाले से and the issues that they have, the things they have to address, and hopefully they're going to put up a great show today against Islamabad United. But let's talk about Islamabad United. Wasim, they have really kind of upped their game and peaking at the right time. या दे लुक मच बेटर. अगर आप उनका प्लेइंग 11 देखें, कंपेयर करें कोयटा से, सो दे लुक स्ट्रॉन्गर. इनके पास 6 से 7 बॉलर हैं, उसमें 4 फास्ट बॉलर हैं. मिल्स है, हुनैन शाह है, नसीम शाह है, फ़हीम अशरफ, ये 4 फास्ट बॉलर हैं. एंड देन ऑब्वियसली इमाद वसीम, शादाब, एंड देन ऑफ कोर्स सलमान आगा भी इनको ओवर करा सकता है. और इनकी बैटिंग भी, आप 8 पे तो फ़हीम आता है, 9 पे नसीम शाह आता है. उसको देखा हमने पाकिस्तान को, उसने 1-2 मैच जिताए हैं नीचे से आके जो छक्के मारते हैं. उसमें टैलेंट है नसीम में, अगर वो थोड़ा फोकस करे ना अपनी बैटिंग में, और वो भी अगेन लंबी क्रिकेट खेलेगा तो उसकी उसमें नो डाउट उसकी बैटिंग में फर्क है. बेहतर जो है रिप्यूट उसके भाई की है, हुनैन की. अच्छा. वो भी हिटे छिटे अच्छे मार लेता है, छक्के मार लेता है. Yeah. All right, ये जरा नजर डालते हैं Islamabad United की जर्नी पे in this HBL PSL 9. This is how it started off. Now, when they started off, it wasn't. It was like an iffy kind of. Because लाहौर कलंदर से ये लोग जीते अपना मैच, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान से हारे अपना मैच, फिर इनका तीसरा मैच क्वेटा ग्लैडिएटर से हुआ, वो भी ये हार गए. उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से हुआ इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच, ये वो भी हार गए. उसके बाद फिर कराची किंग्स से हुआ. खैर कराची किंग्स से तो हर कोई जीता है, यहाँ पर जो है यूनाइटेड जीत गया. उसके बाद आगे चलते हैं हम. जो इनका आगे से था छठा मैच, वो क्वेटा ग्लैडिएटर से था, वो मैच अबैंडन हुआ, 1-1 पॉइंट मिला. फिर इनका ज़ल्मी से मैच हुआ, इन्होंने ज़ल्मी को हराया रावलपिंडी में. लाहौर कलंदर्स को एक दफ़ा इनका मैच हुआ, कलंदर से ये हार गए, एंड दैट वाज यू नो काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ शॉकर फॉर देम. देन कराची किंग्स से अगेन दे वन, एंड देन मुल्तान सुल्तान से भी ये अपना आखिरी मैच जीते हैं. सो ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड पीकिंग एट द राइट टाइम. गुड टूर्नामेंट, हैविंग गुड. रास्ते का पत्थर, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया. जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा दिया. आपकी बात कर रहे हैं भाई, कराची किंग्स वाली गल कर रहे हैं यार. वो टूर्नामेंट तो बाहर हो गए ने. अजय भी होते हैं. खुद से पीछा छड़ दियो तुसी, है क्या कर रहे हो? राइट, आज कोई जीत के दिखाए, मैं कराची किंग्स लूंगा. आज आप कराची बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही है, आप सही है. वसीम इज दैट, आई नो, आई लव दैट स्माइल ऑफ योर्स वसीम. ये गेंद मुझे लगने वाली है. ये गेंद आपको लगनी चाहिए. अभी तुझे तो मैं बाकी मार दूंगा, उसको तो मारता नहीं हूं मैं. पहले पा दो एक मेरी तरफ भी एक ला दो. अजहर, इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग हमने अभी बात की. ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर नाउ लुकिंग लाइक they are in sync, well oiled and operating properly. Yes, you know, Colin Munro जब से फॉर्म में आए हैं, उसके बाद Alex Colin Hale, Munro might not play today. हाँ, उनकी उनकी hamstring hamstring problem अगर है, होगी शायद तो गप्टिल आ सकता है. So Martin Guptill is here. Before we talk, take our conversation forward, we've got Martin Guptill with us. Let's listen in. All right there. असर लग रहा था कि ये खेलने के लिए आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या मुझे लग रहा है क्योंकि कॉलिन मुनरो क्या लग रहा है कि खेलेंगे? हाँ खेलेंगे, क्योंकि कॉलिन मुनरो का जो सवाल हुआ उसमें उन्होंने ये कहा कि होपफुली हो सकता है वो फिट हो, यू नो, वी नॉट श्योर. तो अगर वो फिट होते तो वो ऑलरेडी बता देते. तो अगले 1 घंटे में उनको पता चल जाएगा मुझे चूंकि इतने. Anyway, let's get back to their batting now, and all their departments are clicking really well. हाँ, उनके पास देखें ऑलराउंडर्स भी हैं. स्पिन, पेस अटैक में देख, सॉरी ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं मुनरो के, और वो फिट हो गए वार्म अप हो रहे हैं या फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं. आई डोंट नो, चेक कर रहा. दैट्स अगर हैमस्ट्रिंग खिंची हो तो ये तो नहीं होता आपसे. हाँ, ये तो नहीं होता. ये तो मुझे लग रहा है ये खेल सारा जाएंगे. हैमस्ट्रिंग की एक एक्टिवेशनल एक्सरसाइज है जो उन्होंने की. या So he's playing today. Yeah, seems like. It seems like he's playing अदरवाइज वो कभी भी इतनी ट्राई ना उन्होंने वैसे ही कहा था मैच के बाद कि अब प्ले ऑफ में एक टांग पे भी खेलना पड़े तो मैं खेलूंगा. That's okay. That's his spirit. एक दफा कसम खा लेते वापस नहीं आंदा. अब मेरे ख्याल में मार्टिन गुप्टिल भी जो है ना दुआएं कर रहे होंगे कि फिट हो जाए. नहीं, उसने वो फिल्म देखी हुई है कि एकदम मैं कमिटमेंट कर लूँ तो अपनी भी नहीं सुनता. अच्छा, all right, folks, it's time. रुक जाना, पिच रिपोर्ट आ गई है, पहले वो देख लेते हैं, फिर अजहर बात करते हैं आगे. But there you have the pitch report. Wasim, tired surface. Yeah, tired surface, and rightly so. Arooj and Michael Clark said कि it's not a 200 pitch.
lower your expectation, make sure you get to 165, 170. If you're batting first, then the game on. और जो न्यूज़ आई है कि इस पे मॉइस्चर है, बिकॉज सुने राती उन्होंने तरौंका लाया है। इतना तरौंका लाया जितना वो कमाद में नहीं लाते हो। Chironka की कैसी चिरोंका a new word that has been added to the pavilion vocabulary. वैसे वो छेड़ भी सकता है, शायद आपको छेड़ने के लिए जानबूझ के भी कह सकता है। लेकिन मुझे एक वो गाना याद आ रहा है पंजाबी का, चल चलिए दुनिया दी उस नु करे जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो। चलिए फिर Let's go to that corner of the world. नेशनल स्टेडियम मैच देखने चलिए। National उसे बंदा ना बंदे ही ज़ात वाकई नहीं है फिलहाल। Well, talking about that, let me just there has been an issue on the crowds, and we can understand there's just too many things happening, especially Ramadan की टाइमिंग वगैरह सारी की सारी. However, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था कि अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आपके पास टिकट्स नहीं थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटिंग बॉक्स जो है और वो चाइना ग्राउंड पे ऑपोजिट मेन गेट नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सेटअप किया है. आप वहाँ से जाकर इसी वक्त टिकट लेके सीधा ग्राउंड में जा सकते हैं. एंड पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया तमाम दोस्तों से, फैन से, कि अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो डेजिग्नेटेड TCS सेंटर्स हैं जो बॉक्स ऑफिस प्लेस्ड एट चाइना. सो TCS सेंटर जो भी डेजिग्नेटेड वहाँ से ले सकते हैं, और जो बॉक्स ऑफिस है चाइना ग्राउंड के बाहर, नेशनल स्टेडियम के बाहर चाइना ग्राउंड, वहाँ से भी आप ले सकते हैं. सो वी रियली इनकरेज, आखिरी 3 मैचेस रह गए, प्ले ये एलिमिनेटर्स हैं, go out there and support your own Pakistan Super League. It's your own brand, it's our own country's cricket. इसी लीग के अंदर से हमारे बहुत सारे जो हैं वो प्लेयर्स निकलते हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, and they go compete in the world. So go try to support this. It's necessary. Answering your question, जिथे बंदे ना बंदे दी जात हुए, I think it's up to us now to also encourage the bandas to please go there and participate. Pitch tired, not a 200 pitch as we heard in the pitch report. ज़रा ये नेशनल स्टेडियम के ज़रा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं ये सूरत हाल. 65 मैचेस हुए हैं इस सीज़न में, ये आपके सामने है. मिसबा, you were aware of this more than anybody else. Please share. जी, सारे मैच मुझे लगता है यहीं पे हो गए. 26 मैच नेशनल T20, और जब ये मैच होते हैं तो इनमें गैप भी नहीं होते. एक दिन में 2 मैच होते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज मैच होता है. फिर ये 18 मैचेस आपके प्राइवेट टूर्नामेंट के भी आपने करा दिए यहाँ पे. 8 मैच अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के भी हो चुके हैं, ये PSL के. 7 मैच फर्स्ट क्लास के हुए हैं, जो कि बस हमें ही पता है वो किस किस्म की पिचेस थी. ऐसे लगता था कि बस अखाड़े में खेल रहे हैं. 6 मैचेस वुमेंस इंटरनेशनल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो भी हो चुके हैं. तो जब इतने मैच होंगे तो कई दफ़ा लोगों को लगता है कि जी मैच तो एक पिच पे हो रहा है, बाकियों को क्या होगा. ग्राउंड हर चीज़ अफेक्ट करती है. ज़ाहिर है आप उसको प्रॉपर वाटर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो साथ आपका स्क्वेयर आपने ड्राई रखना होता है, तो वो अफेक्ट तो पड़ता है आपकी पिचेस पे. आप जब तक उसको कम्प्लीटली बंद करके दोबारा से वाटर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी वो पिचेस घास उस तरीके से नहीं आएगी. तो दैट्स वाई वी जस्ट सी के बिल्कुल ही ड्राई है स्क्वेयर, और उसमें लाइफ ज़रा सी भी नज़र नहीं आ रही. माइकल क्लार्क ने अच्छी बात की कि बॉल रिवर्स उन्होंने होते हुए देखा है. बिकॉज ऑफ द ड्राई सर्फेस, द होल स्क्वायर, बॉल रिवर्सेस मे बी एड फोकस मोर ऑन फास्ट बॉलर्स रादर देन स्पिनर्स है. या आपको लगता है कि टर्न लेगी अजहर? नहीं, 3 फास्ट बॉलर तो होने चाहिए आपके पास, क्योंकि स्पिनर्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं फिर, ठीक है, और रिवर्स के लिए चांसेस भी फिर ज़्यादा बनते हैं. ऑलराइट अजहर, थैंक यू, अप्रिशिएट दैट. एंड विद दैट इज इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रेक. वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक. मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक एंड वसीम अकरम सारे थे आपके लिए नेशनल स्टेडियम से. एंड बोथ द टीम्स गेटिंग रेडी विद मी इन द पवेलियन. आई हैव गॉट अजहर अली, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक एंड वसीम अकरम. अजहर, आई स्टार्ट विद यू बिकॉज आपके साथ वो बार बार नहीं आपने की है. पिछले 5 मिनट में 3 मरतबा आपने इसको बिल्कुल बोलने नहीं दिया, और वही बात नहीं इन्होंने जाती की है. मैं बोलने नहीं दूंगा. थैंक यू. Very rarely that you stand in my corner, but thank you very much. Truly appreciate it. अच्छा, वारी आ गई. हाँ जी, बोल दो की मैं सवाल पूछने एक मिनट मैं सवाल पूछने लगा था, तो आप ही के साथी ने मेरे जलसे में पथराव शुरू कर दिया. सवाल ख्याल है टाइम बहुत कम है, टॉस नहीं आपसे फिर भी हमें और गल्ला कर लेने हैं थोड़ा. ये सवाल पूछना है आपसे, बहुत ज़रूरी है. टॉप ऑर्डर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल बी टेस्टेड बिकॉज नसीम शाह इज़ ऑन फायर लेटली, लुकिंग रियली रियली डेंजरस. एंड ऑलरेडी रायरी रूसो भी आउट ऑफ फॉर्म है. सऊद ने भी पिछले कुछ मैचेस में जो है ज़्यादा वो नहीं परफॉर्म किया. दे विल ऑल बी टेस्टेड टुडे. बिल्कुल. नसीम शाह, वन ऑफ द
टफेस्ट बॉलर्स टू फेस इन पाकिस्तान स्पेशली, क्योंकि जैसे जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादा पिच में सपोर्ट ना भी हो तो उनकी जो बॉलिंग है वो डेंजरस है, स्किडी हैं, तेज़ हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं, और एट टाइम्स लगता है कि यार उन पर रन्स बनाना भी मुश्किल है। तो आई थिंक ये चैलेंज होंगे, और इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विकेट्स अर्ली ऑन हासिल करें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक ऐसा है कि नसीम शाह के बाद थोड़ा सा एट टाइम्स लगता है कि इस्लामाबाद की बॉलिंग ज़रा वीक हो जाती है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, नॉट इन द स्पिन डिपार्टमेंट। खास इंप्रेस नहीं किया हमें। हाँ, मिल्स हैज बीन pretty ordinary throughout this तो नसीम के ऊपर रिलाय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बाकी पे शदाब और इमाद आ जाते हैं, और फ़हीम है, अगर रुमान रईस खेलते हैं वो एक्सपीरियंस से अपनी बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर उतना कोई थ्रेट नहीं रहता उनके स्पेल के बाद। लेकिन टैक्टिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे। कराची में आप नया बॉल, ठीक है एक क्वालिटी बॉलर ने 2 ओवर किए पावर प्ले में, लेकिन मैक्सिमम आप नए बॉल के साथ जितना स्पिन यूज़ कर सकते हैं, लास्ट मैच में भी हमने देखा, और प्रिजर्व करें अपने फास्ट बॉलर्स को। रिवर्स जब आती है 10वें ओवर के बाद, 12वें ओवर के बाद, तो बहुत इफेक्टिव होती है। तो ये टैक्टिक्स भी बड़ा मैटर करेंगे, कैसे दोनों टीमें लेके चलती हैं इसको। Yeah, so the spinners come into play right up the order, and that's what we're expecting. The captains are all are getting ready. अभी हम आपको ले जाएंगे Hafiz quickly for Islamabad United. For you, who do you think is the key player on that pitch that we've just seen? शादाब खान। Shadab Khan, both batting and bowling. एब्सोल्युटली। Right, and why do you क्योंकि say अभी तक वो जब भी बैटिंग कर रहे हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं, अग्रेशन के साथ भी खेलते हैं, और उनके 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो 2 या 3 आउट करते हैं मिडिल ओवर में, मोस्टली वो 6 ओवर के बाद बॉलिंग करते हैं, अगर वो 2 से 3 आउट करते हैं 40 से 50 रन करते हैं, विनिंग द गेम। All right, with that, the news is that captains are walking out for the toss. Yep, Islamabad United have won the toss and decided to boom, and here's the Islamabad United squad. Naseem, up to you. Go ahead. Yeah, a couple of changes वो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। Guptill comes in for Munro, and then of course McCoy comes in from Mills. Maybe according to Misbah, it's a better choice because he's got good variation on a slow deck, and they won the toss and they elected to bat first. I like the Shadab outside Khan. of their comfort zone. They always love to chase, but again, it shows कि wicket पे है थोड़ा कुछ पानी छिड़का, रात को ठीक ठाक लगे उस पे। Hafiz, take us through Quetta Gladiators. जी, क्वेटा ग्लैडिएटर जो एक हमें लग रहा था कि रदरफोर्ड खेलेंगे, लेकिन आई थिंक क्योंकि वो शायद वापस गए और ये उनको नहीं खिलाना चाह रहे, क्योंकि वो कह रहे कि उन्होंने पता नहीं क्रिकेट खेली है कि नहीं खेली, विच इज़ फेक कॉल। गोइंग विद द सेम टीम जो उन्होंने पिछला मैच खेला है, और मुझे लगता है कि वही स्पिन ओरिएंटेड उनकी जो सोच है कि वो उसके ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। Wasim, okay, one thing that I really enjoyed was Shadab Khan's confidence in calling everybody old bloke, old. I mean, compared to him, yes, they were old codgers. Yeah, and Rutherford not playing. That's a surprise. That is bizarre. उसको बुलाया इतनी दूर से है, वेस्ट इंडीज से अगर आप बिजनेस क्लास टिकट ले, लॉजिस्टिकली भी देखा जाए, फाइनेंशियली भी देखा जाए, doesn't make any sense. It's about $12,000 to $15,000, and he came all the way after a week and a half, and then they didn't play him. कह रहे हैं कप्तान ने कहा है कि उसने पता नहीं क्रिकेट खेली या नहीं खेली जब वो 1.5 हफ्ते के लिए गया था। जब वो जा रहा था तो जाहिर बात है उनको पता था कि गर्मी खा गया लगता है। मुझे लगता है गर्मी हो गई है थोड़ी सी। Somebody's ego has been bruised. Maybe we need to find out the inside story by the Silver Fox. With that, it's time for the expert predictions. All right, expert predictions. Azhar Ali. Quetta Gladiators. QG. Wow, big call today. Big call today, Azhar Ali. हमारा शेर, जख्मी शेर, जख्मी शेर, नो हरावानी जख्मी शेर, सॉरी हरावानी जख्मी शेर। ठीक है, all right. Hafiz, इस्लामाबाद। you Wasim? Islamabad looks stronger for me. You Although I and want Quetta to win. okay, Misbah? कराची। खिंच के मारो पायल, ऐ जरा पढ़ो, खिंच के मारो गेंद सिर पे। अच्छा, अब यार मैं जीत चुका हूँ, मुझसे क्यों पूछते हैं? Don't ask him. he's a sore winner. इस्लामाबाद यार। He's a sore winner. अब तो हर मैच में मेरी इस्लामाबाद ही लिखे हैं यार। अच्छा, अब इस्लामाबाद। नॉकआउट में फिर आप मैच चेंज कर देते यार, ताकि नॉकआउट का स्टेज डिफरेंट आ जाए। अब इसमें ना अगर गलत हो गया ना तो नॉकआउट कर देंगे एक पॉइंट। ठीक है। All right, and those are your expert predictions. अजहर, आपको क्या लगता है बैटिंग फर्स्ट से किस किस्म का टारगेट चेस करना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर है विकेट पे, लेकिन आई थिंक 160-170 तो एटलीस्ट आपको करना है इन नॉकआउट स्टेज। अब इनके लिए तो नॉकआउट ही है,
तो आई थिंक 160 170 एम करें, उसके ऊपर फिर जितना हो ठीक जाए। है सर, थैंक यू वेरी मच Azhar, really appreciate it. With that I'll say thank you and over to the National Stadium where the eliminator number 1 Quetta Gladiators versus Islamabad United is about to commence. We will see you on the other side of the game. Stay with us.